Bismillahirrahmanirrahim. My very respected parents, honorable teachers and hardworking students. Assalamu alaikum. Today we are going to study page number 8 and 9 of Students Book 1. Yes, all the students of class 1 go bring your English book, English Students Book quickly. Shabash, everyone has brought their book. सब अपनी अपनी बुक ले आई है. अब आप खोलेंगे पेज नंबर 8. लेसन नंबर 1 फियोनास ड्राइंग में हम रीडिंग और उसके कंप्रीहेंशन के एक्सरसाइजेस कर चुके हैं. आज हम पेज नंबर 8 पर मौजूद कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे. सो आर यू अटेंटिव? I will start from the first concept. The first concept is very interesting concept. Everyday English. Yes, everyday English is a very interesting topic. In this topic, we are having one picture, जिसकी हमने picture comprehension करनी है, अच्छे तरीके से उसको समझना है. Then a dialogue related to that picture, having different characters. And then after doing the reading and picture comprehension, we will do its role play. And after doing the role play, we will become familiar with all these dialogues and you will use these dialogues in your own everyday life. हाँ जी, हम इस रोल प्ले को करेंगे और इस रोल प्ले को करने के बाद इसमें मौजूद डायलॉग्स को आप अपनी एवरीडे लाइफ में भी इस्तेमाल करेंगे. Over here, I would like to remind you that in the description there is a link. You will just click that link. इस लिंक को आप क्लिक करें और इसके ऊपर एवरीडे इंग्लिश के इन डायलॉग्स की प्रैक्टिस की तमाम मशक मौजूद है. उसको अच्छे तरीके से देख के आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली करने के काबिल हो सकेंगे. Even though one time I will tell you the proper readings of these dialogues. Are you attentive? Ready? Should I start? Take care of the proper pronunciations and intonations of English. Okay? Are you ready? Listen it properly and follow it. Frank. You look upset. Johnny, I had a bad day today. Frank. Why? What happened? Johnny, I lost my wallet while I was jogging. Frank, oh, I'm sorry to hear that. Is it clear? In this way, you will do the practice of this dialogue and you will perform your role play. And try your best to use these dialogues in your everyday life. आपके साथ भी तो कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना जब आप थोड़ा बैड या सैड फील करते हैं. So you can say that I had a bad day today. I'm feeling sad. और आप किसी अपने दोस्त से पूछ भी सकते हैं कि what happened? Why you are sad? Understand? The practice of this dialogue will give you confidence to speak English. जब आप रोज़ाना ऐसे डायलॉग्स की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग छोटे छोटे जुमलों में इंग्लिश बोलने के काबिल हो सकेंगे. Okay? Now I will come to the next topic of page number 8. The next topic is the extra reading. It is also very interesting thing. In extra reading also you will do first picture comprehension. यहाँ पर ये जो येलो शर्ट में लड़का खड़ा है, आपको क्या लग रहा है? ये कहाँ जा रहा है भला? I think so he is having a football with him. So he is going to play. This boy is telling something about him. So do it this extra reading in a proper way and we will came to know what this boy is telling us. This boy is telling us something now. I'm going to do one model reading for you. Hello, my name is Will. I usually wear t-shirts and shorts at home. I play football. I have got sports clothes too. I wear them on Wednesday afternoon and at weekend. Is it clear? In this way, with proper pronunciation, do this reading and try to understand it. कि विल जोन सा है वो दिन में क्या काम करता है और अभी विल ने फुटबॉल क्यों पकड़ा हुआ है? Because he liked playing football. और उसने भी शॉर्ट्स और टी शर्ट्स ही पहने हुए हैं. ओके? आप शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहनते हो जब आप खेलने के लिए जाते हो? गुड. इस तरह से आपने इसको प्रॉपरली समझने के बाद इसके नीचे मौजूद सवाल का जवाब तलाश करना है. एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डज विल वेयर एट वीकेंड? प्लीज टेल मी, व्हाट डज विल वेयर एट वीकेंड? अभी अभी विल ने आपको बताया ना वो वीकेंड्स पे क्या पहनता है. ही वेयर टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स. शाबाश. द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोनाउंसिएशन. In your pre-classes, you people have done the reading of English alphabets with their phonics. A, B, K,
Do you remember? You know all the alphabets with their sounds. So over here, for the proper pronunciation, the book is giving us one sound, and that is the sound of G. What is the sound? Say after me. G. G is the sound of G. G की आवाज है G, और G साउंड यहाँ पर हमें दी गई है. अब हम तमाम वर्ड्स में G साउंड को प्रॉपरली प्रोनाउंस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, G goat, girl, gun, goose. Understand? Is it clear to you? ओके जी, अब हम काम करेंगे पेज नंबर 9 के ऊपर. सब बच्चों ने पेज नंबर 9 खोल लिया है. पेज नंबर 9 के ऊपर हमारे पास कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, यूज ऑफ इज और एम. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज, और आप लोगों ने प्री स्कूल में भी प्री लेवल 3 में, मतलब अपनी प्रेप क्लास में इसके बारे में पढ़ा हुआ है. आई के साथ हमेशा यूज होता है एम. एम इज यूज्ड विद आई. जब भी किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आई होगा तो उस सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करेंगे एम को. आई एम. क्लियर? अब हम बात करते हैं आर की. आर किसके साथ यूज होगा? जब भी हमारा सब्जेक्ट वी, यू एंड दे होगा तब हम यूज करेंगे आर. आप इस कॉलम को देख सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. अब हम बात करते हैं इसकी. इस किसके साथ यूज होगा? ही, शी एंड इट के साथ. इज इट क्लियर टू यू? यस. आपने प्रॉपरली इस कॉलम को लर्न करना है. इस कॉलम को लर्न करने के साथ अपने जहन में बिठाना है कि एम, आर और इज कब और किसके साथ इस्तेमाल होते हैं. इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना. अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ना तो कोई किसी बात से नफी की जाती है और ना ही कोई सवाल पूछा जाता है. बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, दे आर फार्मर्स. आप इसमें एक सेंटेंस देख रहे हैं ना अफर्मेटिव के नीचे, दे आर फार्मर्स. वो फार्मर्स हैं. क्या इसमें नॉट यूज हुए? प्यारे बच्चों, आपने अपने जहन में एक बात बिठानी है कि वो जुमला जिसमें ना तो नॉट यूज हो रहा है और ना ही उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क है, उसमें कोई सवाल भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंस है. इज इट क्लियर? अफर्मेटिव के लिए आप एक सिंपल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. ओके. डेविड इज शॉर्ट. सिंपल सेंटेंस. I'm 7. It's a simple sentence. But when we will make it negative, we have to do one thing. जब हम इसको मनफी जुमले में बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है is, are और am, इन सब के बाद हम not लगा देंगे. is, are और am के बाद क्या लगाएंगे? not. is, are और am के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे? not. जब हम is, are और am के बाद not लगाएंगे तो हमारे पास जुमला मौजूद होगा, वो मनफी जुमला, नेगेटिव सेंटेंस होगा. कौन सा जुमला होगा? नेगेटिव सेंटेंस. शाबाश. Now read this negative sentence. They are not farmers. David is not short. I'm not 7. Clear? पॉजिटिव सेंटेंस में are, is और am के बाद not नहीं था. Now I will talk about the question. अब हम क्वेश्चन बनाने के बारे में सीखेंगे. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बनाने के लिए जुमले के दरमियान में जो is, are और am इस्तेमाल हो रहे हैं, हम इसको उठा के जुमले के शुरू में ले आएंगे. फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. ये 3 काम आपने अपने जहन में रखने हैं. सबसे पहले क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को उठा के is, are और am, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है. ओके. हेल्पिंग वर्ब को जब शुरू में लेके आना तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और उस जुमले के एंड में हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आर दे फार्मर्स? इज डेविड शॉर्ट? एम आई 7? क्लियर? अब इन्हीं एग्जाम्पल्स की हेल्प से नीचे प्रैक्टिस में दिए गए सेंटेंसेस को आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है. आई विल एक्सप्लेन जस्ट वन सेंटेंस फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, आई एम बैड एट स्पोर्ट्स. आई एम बैड एट स्पोर्ट्स. ये एक सिंपल सेंटेंस है. इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट बैड एट स्पोर्ट. और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे?
एम को उठा के शुरू में लाए, एम आई बैड एट स्पोर्ट्स। अंडरस्टैंड? इस तरह से सेम इसी पैटर्न पे हम इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब पेज नंबर 9 पर एक और कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसको कि हम बोलते हैं कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म को। ऊपर अभी अभी हमने आई एम बोला ना, आई एम एक मुकम्मल फॉर्म है, ही इज एक मुकम्मल फॉर्म है, दे आर एक मुकम्मल फॉर्म है, लेकिन जब हम इन दोनों को अपोस्ट्रोफी के साथ शॉर्ट करके लिखते हैं तो वो इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म होती है। वो इसकी क्या होती है? कंट्रैक्शन फॉर्म। कंट्रैक्शन फॉर्म इज वेरी गुड फॉर प्रोनाउंसिएशन। कंट्रैक्शन फॉर्म से ये फायदा होता है कि हम इंग्लिश को आसानी से बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम में ए को हटा के ए की जगह पे अपोस्ट्रोफी लगाई और सिर्फ एम लगा दिया, आई एम। अंडरस्टैंड? वी आर में हम ए को हटा के अपोस्ट्रोफी लगा के उसको जोड़ देंगे तो वी आर। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज यू आर में से ए को हटा के अपोस्ट्रोफी लगा के उसको जोड़ के बना देंगे यू आर। नेक्स्ट इज दे आर ही इज हिज, अपोस्ट्रोफी हटा के एस लगा दिया, हिज। शी इज इट्स, इट इज इट्स, अपोस्ट्रोफी लगा दी हमने तो वो इट्स बन गया, उसमें हमने आई को उड़ा दिया। इसको आपने प्रॉपर तरीके से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से हमारे पेज नंबर 9 के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। पेज नंबर 8 और 9 के इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ के आपने लर्न कर लेना है, क्योंकि एग्जाम्स में ये तमाम चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाएंगी। आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। स्टे ब्लेस्ड, कीप इन टच, अल्लाह हाफिज़।